Sit down. Write them. Write there. Uses of scales for measurement. Uses of scale for measurement. तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि जितना भी हम लोगों को क्या होता है कि आउटलाइंस और बाउंड्रीज दिखाना होता है उसमें सिर्फ पॉलिटिकल मैप यूज़ करते हैं. ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे फिर आंसर करेंगे. नाउ यूजेस ऑफ scale for measurement. There are three types of scale. There are three types of scale that are commonly used. Okay, first verbal scale, VERBAL, verbal scale, VERBAL, verbal scale, verbal scale. In this type of scale, comma, the units of distance are mentioned. The units of distance are mentioned on the map. Full stop. For example, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर. यहाँ पे हम लोग क्या शो करते हैं, 1 सेंटीमीटर का वैल्यू 50 किलोमीटर. मतलब हम ये बता दिए कि 1 सेंटीमीटर जो है मेरा वो 50 किलोमीटर है. ठीक है, तो जैसे ही अगर हम लोगों का यहाँ दिया जाएगा कि 3 सेंटीमीटर है तो तुरंत हम लोग क्या कर बताएंगे कि 150 किलोमीटर है. ठीक है, ये हम लोगों का क्या है कि एक स्केल है और ये स्केल हम लोग क्या करते हैं खुद क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्चुअल डिस्टेंसेस ऑफ ग्राउंड और ग्राउंड ऑफ मैप. मैप का हम लोग एमडी देख लेते हैं, अभी बताए थे ना कि मैप डिस्टेंस को और फिर ग्राउंड डिस्टेंस को और तब फिर हम लोग उसका क्या करते हैं कि डिस्टेंसेस अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर. This means that 1 centimeter of map this means that 1 centimeter of map corresponds to a distance of 1 centimeter of maps corresponds to a distance of 50 kilometer on the ground. 50 kilometer on the ground. Okay. Second, linear scale, LINEAR, linear scale. A linear scale is a line. A linear scale is a line divided into equal parts. Called primary division. Full stop. A linear scale is a line divided into equal parts called primary division. Full stop. The first primary division
the first primary division is further divided into smaller, is divided into smaller, the first primary division is further divided into smaller parts called secondary division. फुल स्टॉप. नीचे लिखोगे विदाउट लिविंग एनी लाइन, एडवांटेजेस. This type of scale advantages. This type of scale helps in the direct measurement. This type of scale helps in the direct measurement of distance. This type of scale helps in the direct measurement of distance on a map. फुल स्टॉप. हम लोगों का एक चैप्टर था रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैप. ये हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे. कब पढ़े थे, किसी को याद है? एनीवन? ऑनलाइन क्लास में पढ़े थे. वेरी गुड. ठीक है, ऑनलाइन क्लास में ही पढ़े थे, समझे. तुमको याद है, बहुत अच्छी बात है. हम लोग ऑनलाइन क्लास में पढ़े थे और पेरिस में थे हम लोग उस दिन. हम थे उस दिन, समझे. तो ये याद है, बहुत अच्छी बात है. हर एक चीज़ का अगर तुम्हारा क्या होगा कि एक स्लॉट्स डिवाइड होगा ना, कि ये टाइम पीरियड पे ये काम किए थे इस टाइम पे, तो वो अच्छा होगा. ठीक है, उससे तुम आगे का भी अपना कैलकुलेशन कर सकते हो. वेरी गुड. थर्ड वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. दिस स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शन. FRACTION. रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. ब्रैकेट में लिखेंगे RF, R.F, है ना, RF. और आप लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया, सर नहीं पढ़े. आपने नहीं पढ़ा, इट्स योर फॉल्ट. स्कूल में भी आया था कुछ. वेरी गुड. लिखो द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस. The ratio between the map distance and the ground distance is represented as a fraction called representative fraction. R.F is equal to 1 write that. Okay, RF 1 ratio 1 lakh. It means that
इट मीन्स दैट, नहीं लिखना। लिखना है, इट मीन्स दैट a distance of, it means that a distance of 1 centimeter on, it means that 1 centimeter on the map represents a distance of, represents a distance of 1 lakh centimeter on the ground, 1 lakh centimeter on the ground, that a distance of 1 centimeter starting से, it means that a distance of 1 centimeter on the map represents a distance of 1 lakh centimeter on the ground. or ground, full stop, or in other words, comma, or in other words we can say, or in other words we can say that 1 centimeter on the map represents 1 kilometer. 1 centimeter map represents 1 kilometer on the ground. Map represents 1 kilometer on the ground. Okay. All of you just match your notebooks. Okay, now Anvesha will read the first point. Verbal scale. In this type of scale, the units of the distance are mentioned on the map. 1 centimeter is equals to 50 kilometers. This means that 1 centimeter of map corresponds to a distance of 50 kilometers on the ground. Is it possible? Is it possible? Because we have written. ये हम लोगों का क्या है कि ज्योग्राफिस्ट ने बता दिया, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर का वैल्यू 50 किलोमीटर होगा, हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग जिस तरह से मैथ में सपोज करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ से सपोज किया गया, माना के 1 सेंटीमीटर का वैल्यू मेरा क्या है 50 किलोमीटर है। इसी तरह से हम लोग अभी हम बताए थे, अभी तक हमको नहीं लगता कि तुम लोग इसका मतलब तो मैप पे जो हम लोग क्या करते हैं मैथ में जो ग्राफ बनाते हैं तो उस पर स्केल नहीं लिखे हो, लिखे हो स्केल? स्कूल में कभी मेंशन नहीं करवाया गया इस चीज़ को? करवाया गया होगा। ऊपर में स्केल हम लोग लिखते हैं कि 10 बॉक्सेस रिप्रेजेंट्स इतना सेंटीमीटर। अगर हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग इस तरह से एक्स और एक हम लोग वाई एक्सिस लेते हैं और बार ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं समटाइम्स 10, 20, 30 एंड 40 इस तरह से लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग कभी क्या करते हैं कि कोई वैल्यू दिया रहता है कि अक्षिता के पास 2 चॉकलेट है
और अन्वेषा के पास 4 चॉकलेट्स 4 टॉफीज हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हम लोग सेम ये डिस्टेंस यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग तुरंत चेंज कर देते हैं, 2 4 ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू मतलब वहाँ क्या होता है कि जितना भी बॉक्सेस है उसका वैल्यू हम लोग 10 ले रहे हैं। तो वहाँ हम लोगों को एक स्केल लिखना होता है, वो स्केल हम लोग लिखते हैं ग्राफ में। इस चीज़ को आप लोग जानिए, क्लास 7 में जान लेना चाहिए था। क्लास 7 में ग्राफ का चैप्टर है, ठीक है, तो जानना चाहिए था ये। बैठ जाओ। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 50 किलोमीटर को। ये सिर्फ क्या है, हम बोले तो हो गया, ठीक है, ये हम सिर्फ मान रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर जितना हम लोग लिए ना वो 50 किलोमीटर है। अब 50 किलोमीटर वैसा वैसा हम लोगों का कितना सारा किलोमीटर है, समझे। तो वहाँ पे हम लोग क्या किए, उसको 1 सेंटीमीटर ले लिए, क्योंकि मैप पे का हम लोगों का क्या है, एक लिमिटेड पेज है, लिमिटेड पेपर पे हम लोग उसको शो कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करें, एक इंडिया का मैप बनाएं तो बिल्कुल जितना भूमिगत है, जितना बड़ा लैंड है उतना बड़ा ही हम लोग पेपर ले लें, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, एक्चुअल शो करना है। तो इसलिए हम लोग मैप को क्या करते हैं, और ग्लोब के बारे में भी हम लोग पढ़े थे ना, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी। तो मैप हम लोगों का डिफ़िकल्ट टू कैरी नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें 3 टाइप्स ऑफ स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हम लोगों का क्या है, वर्बल है, एक हम लोगों का लीनियर है, और एक हम लोगों का आरएफ है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसलिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंट स्केल्स को यूज़ करके और डिफरेंट सेक्शंस हम लोग शो करते हैं। और आरएफ पे हम लोगों का टोटल टोपोग्राफी आधारित है, टोटल बेस है आरएफ पे। और जितना भी हम लोगों का हैचुर लाइन्स है और कंट्रोल लाइन्स है, समझे, क्लियर करवा देंगे हम अभी अगले क्लासेस तक, ठीक है। जितना क्लासेस हम लोग करेंगे ना उसमें हम लोग सब चीज़ ले लेंगे कि किस तरह का लाइन्स होता है, किस तरह का कंट्रोल्स होता है, समझे, कितना हम लोगों का ग्रिड होता है, कितना सेक्शंस होता है, कितना आर होता है, बहुत सारी चीज़ें, समझे। तो अभी बस ये पहले चलने सीख जाओ, दौड़ना सिखा देंगे, तो थोड़ा थोड़ा उस चीज़ का कंटेंट, लेकिन उस पर वर्क करो। और अगर वर्क नहीं करोगे तो एक समय क्या होगा, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स होगा तुम्हारे पास। और वो जो अभी तुम लोग कर रहे हो ना, उसको क्या करो, जब तुम पढ़ो तो उसको थोड़ा, ये नहीं कह रहे कि हम हाईलाइटर से पूरा जो है उसको पिंक और येलो कर देना, थोड़ा पेन से डिफरेंट पेन यूज़ करके लिखने टाइम में यूज़ करो, और नहीं तो एटलीस्ट अंडरलाइन करो, एक रेड और एक पिंक और ग्रीन, कोई भी पेन उस पर यूज़ करो, और स्केच पेन यूज़ मत करना, अट्रैक्टिव होगा। और एक बार अगर तुम इस कॉपी को ही क्या करोगे, पूरा बना करके रख दोगे, ठीक है, लाइफ में अपने कभी भी इसको ओपन करके, तो मैप से कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कुछ भी क्लियर कर सकते हो। क्लास 10 में तुम लोगों का क्या होगा, 20 मार्क्स का टोपोग्राफी होगा। अभी हम लोगों का एसएससी का सिलेबस बट डिवाइड हो गया ना, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, तो उसको भी आधा कर दिया गया, इसको भी आधा कर दिया गया है। अभी कुछ समय में, साल में क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर वहाँ 20 मार्क्स का सेपरेट टोपोग्राफी होगा, 20 मार्क्स का 9 में होगा। 9 में चलिए आपका ठीक है डोमेस्टिक एग्ज़ाम होगा, घरेलू एग्ज़ाम, तो आप कुछ भी किए। लेकिन 10 क्लास में तो वो क्या होगा, हर एक डॉट बॉल सोने के माफिक मापा जाता है, जब क्या होता है कि बॉल कम होता है और रन ज़्यादा होता है। इसीलिए हर एक टाइम पीरियड पे आपका 2 10 क्वेश्चन होगा, 2 × 10 ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आप उसको पाने की कोशिश कीजिए, खोने की नहीं। सेकंड वाला जो हम लोग देख रहे हैं वो है हम लोगों का लीनियर। क्या कहता है, लीनियर स्केल। हु विल रीड, यस यू, गायत्री जो इतना कुछ हो गया तुम्हारे पीछे वाले सीन पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करो, बिल्कुल समझ गए, आए बैठे पढ़े, जितना पढ़े स्टार्ट करो। Take your copy in your hand. The first primary division is which are divided is into secondary division. Anjali. A linear scale is a line divided into equal parts called primary division. The
further divided into smaller parts called secondary division. सेकेंडरी डिवीज़न। किसी भी चीज़ में हम लोग जो क्या कर रहे हैं, बैठ जाओ, सिट डाउन, फ्रैगमेंटेशन करते हैं ना, फ्रैगमेंट्स। अगर हम लोग क्या करते हैं, फ्रैगमेंट्स करते हैं, एक ही लेते हैं और उसका क्या करते हैं, डिफरेंट सेक्शंस और डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बनाते हैं। अब वहाँ पे वो जो हम लोग फ्रैगमेंट्स बनाते हैं, दैट मीन्स टुकड़ा, उसी टुकड़े के अनुसार क्या करते हैं, अन्वेषण ऐसे की, समझे भी। अब समर में जनरली हम लोग वैसे करते रहते थे, ठीक है, लेकिन ओके। ए लीनियर स्केल इज द लाइन, देखो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। एक लीनियर स्केल जब हम लोग बनाते हैं ना, तो उसको इक्वल पार्ट्स में, चले जाओ थोड़ा सा मैथ में, इंटीजर को देखो अपने माइंड में, हम लोग उसमें स्केल यूज करते थे ना, जब हम लोगों को क्या करना होता था कि इंटीजर के लाइंस पे क्या करना होता था, रिप्रेजेंटेशन करना होता था किसी भी नंबर का। तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि सबसे पहले 0 1 2 3, ठीक है, -1 -2 और -3। तो यहाँ पे हम लोग अभी विद फ्री हैंड ले लिए, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, इसको फ्री हैंड लेना नहीं होता है, इसको हम लोग स्केल रिप्रेजेंटेशन के साथ लेते हैं। और इसमें तुम देख रहे होगे कि नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स, ठीक है, जिसके लिए वर्ड हम क्या अभी दिए थे, क्या वर्ड दिए थे, फ्रैगमेंट्स। तो हम अभी बोले वहाँ क्या वर्ड यूज किया है, ठीक है, डिविजन्स। हम लोगों का हर एक सेपरेट डिवीजन क्या किया गया है, उसको एक सेपरेट डिवीजन में डिवाइड किया गया, डिवाइडेड इनटू इक्वल। हर एक डिवीजन को क्या किया गया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अगर हम लोग यहाँ क्या करें कि 0 to 1 हम लोगों का क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, और 1 के बाद हम लोग 2 लेंगे, 2 सेंटीमीटर के बाद। ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का जितना भी होगा क्या होगा कि वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी इंटीजर्स नंबर लाइन बनाते हैं तो इसको स्केल से बनाते हैं और फ्री हैंड से नहीं बनाते हैं। और मैप में हम लोगों का कुछ है जो हम लोग जिसको फ्री हैंड से कर सकते हैं, तो जब हम लोग वो करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। अभी हम लोगों का क्या बताया गया कि ए लीनियर स्केल इज द लाइन डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स कॉल्ड प्राइमरी डिवीजन। The first primary division is further divided into smaller parts, that is called secondary division. एक एक हम लोगों का प्राइमरी डिवीजन क्या कर रहा है, एक एक सेक्शन डिवाइड होकर के एक दूसरा पोर्शन बना रहा है। और दूसरा पोर्शन बनाने के बाद क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली जितना हम लोग ऐड करते जाएंगे उतना हम लोगों का क्या होगा कि नंबर लाइंस बढ़ता जाएगा। हम लोग ABCD ब्लॉक देखते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, जितना ब्लॉक्स बनाते हैं उतना ज़्यादा हम लोगों का क्या होता है, लेवल, ठीक है, राइज करता है, और जितना उससे निकालते हैं उतना डिक्रीज करता है। तो ये हम लोगों का क्या डिफाइन कर देता है, लीनियर स्केल। क्या डिफाइन कर देता है, लीनियर स्केल। थर्ड वन RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अनिकेत, The ratio between the map distance and ground distance is represented as fraction called representative fractions. RF equal to 1 ratio 1 lakh. It means that a distance of 1 centimeter on the map represents a distance of 1 lakh centimeter on the ground, or in other words we can say that 1 centimeter on the map represents 1 kilometer on the ground. क्या किए, वैसे पढ़ा जाता है, उसको ब्रेक करके पढ़ो। जस्ट टेक द नोटबुक इन योर हैंड। The ratio between the map distance and ground distance is represented as fraction called representative fraction. क्या समझे? रेशियो मैप का और मैप डिस्टेंस,
कॉमेडी हो रहा क्या? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, द रेशियो, फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो जैसे हम लोग बात किए, किसी भी चीज़ को हम लोग रेशियो में इसी तरह शो करते हैं 1:1, ठीक है। अब जो भी हम लोगों का क्या होगा, रेशियो, रेशियो किस चीज़ को बताता है? नम्रता स्टैंड अप। रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है? गायत्री, अंजलि, आशी, नम्रता, तेजस्वी, हाँ आप सब लोग रहेंगे, आप बैठ जाइए। फ्रैक्शन को, वेरी गुड, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम लोग जब फ्रैक्शन में लिखते हैं, फ्रैक्शन में क्या करते हैं, जब हम लोग इन द टर्म्स ऑफ p/q, मतलब किसी भी टर्म्स को जब हम लोग क्या करते हैं p/q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, वो हम लोग का फ्रैक्शनल फॉर्म कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर भी कहते हैं, है ना। क्या है तुम लोगों का, अभी तुरंत क्लास 7 पढ़े हो, सब कुछ ये सब पढ़े होगे, हाँ। द रेशियो बिटवीन द मैप एंड द ग्राउंड डिस्टेंस, कि अब हम लोग इसको लिख सकते हैं RF इज इक्वल टू, लिखो RF इज इक्वल टू MD/GD। MD/GD नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, कहता है इट मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, तो फिर हम लोग इसको एक लाइन और आगे लेकर के जा सकते हैं, MD/GD ग्राउंड डिस्टेंस, और फिर उसके आगे लिख सकते हैं क्या, 1 बाय 1 लाख, ठीक है। अब ये आ गया फ्रैक्शन में, ठीक है। बैठ जाओ, ऑल ऑफ यू सिट डाउन। और हम लोग क्या अभी बोले थे, एक लाइन और लिखे थे, और इन द अदर वर्ड्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर जो है हम लोगों का वो 1 किलोमीटर को क्या करता है, बताता है। जैसे अभी हम लोग लिखे थे यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। तो जितना भी सेंटीमीटर्स होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या करेंगे, हाँ, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट, मेजरिंग डिस्टेंस ऑन यूजिंग स्केल्स। लिखोगे मेजरिंग डिस्टेंस ऑन द मैप यूजिंग स्केल्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्टेंस इज द स्पेस बिटवीन टू प्लेसेस, डिस्टेंस इज द डिस्टेंस इज द स्पेस बिटवीन टू प्लेसेस। कोई भी हम लोग डिस्टेंस क्या कहता है, कोई भी हम लोगों का दो इवेंट है, 2 पॉइंट, A to B, ये क्या हम लोग इसका फाइंड आउट करेंगे, A to B क्या डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस इज द स्पेस बिटवीन टू प्लेसेस, ओके। द यूनिट ऑफ मेजरिंग, कंटिन्यू, द यूनिट ऑफ मेजरिंग
the unit of measuring distance, the unit of measuring distance, the unit of measuring distance are kilometer and meter, are kilometer and meter on the ground. देखो हम लोग क्या कहता है कि द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस आर किलोमीटर एंड मीटर ऑन द ग्राउंड एंड सेंटीमीटर्स ऑन द पेपर एंड सेंटीमीटर ऑन द पेपर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन कौन दिखा सकता है इस मैप पे आकर के? हम जिसको बुलाते हैं वो थोड़ा आकर के बताइए. हर्ष, स्लो एंड स्टडी. टॉपिक ऑफ कैंसर. Anyone? Anyone? तीन चार ट्रिक हम अभी बताएंगे तुम लोगों को, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करेंगे कि इंडिया का टोटल स्टेट को कहाँ पे कौन सा है उससे क्लियरली बिल्कुल जो है यहाँ माइंड में हम लोगों के छप जाएगा. बस सिर्फ उसको क्या करना, उस ट्रिक को बहुत ही अच्छी तरह याद रखना है. और अगर उसको ट्रिक को बहुत अच्छी तरह याद रखोगे और पेन और पेपर का प्रैक्टिस विथ मैप करोगे, बहुत अच्छी बात होगी. फिर जस्ट एक तुम लोगों को अभी हम बता रहे हैं, अभी हम लोगों को क्या कर रहे थे, मेजरिंग डिस्टेंस ऑन द मैप स्केल, है ना. देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके. इस पोर्शन से हम लोगों का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन हम लोग लेते हैं, ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा है क्या? देखो लिखा भी था, समझे. देख लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन. अब हम लोग अच्छे रुक जाते हैं, वेट, लिखेंगे कुछ. गो बैक टू प्लेस. ठीक है. एक चीज हम लोगों को सिर्फ याद रखना है, समझे, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो हम लोग कार्डिनल डायरेक्शन देखे थे वो हम लोगों का क्या है, ईस्ट टू वेस्ट. और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे. आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल लेवल टू एंट्रेंस लेवल तक जाने कि ईस्ट टू वेस्ट हमारा कौन सा स्टेट आता है और वेस्ट टू ईस्ट हमारा कौन सा स्टेट आता है. ठीक है. GRMCJBTM, घर में MCB. डोंट लाफ.
वेरी गुड। घर में एमसीबी लगवाएं तुम्हारे लिए। दूसरा क्या बोले? मार्किंग टूल। नो, इट्स ओवर। घर में एमसीबी लगवाएं तुम्हारे लिए, ठीक है। मुझे उसकी कोई नीड नहीं थी, मुझे उसकी कोई नीड नहीं थी। GRMCB, ठीक है। और MCB में जब हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड होता है ना JCB, ठीक है, JCB, तो हम लोग यहाँ से C को टर्मिनेट कर देंगे, या MCB जो हम वर्ड यूज़ किए, मैनेजर सर्किट ब्रेकर, जो हम लोग घर पे क्या करते हैं, लगवाते हैं, ठीक है। हाँ बोले तो मैनेजर से। घर में MCB लगवाएं तुम्हारे लिए, तो यह MCB GR लिखेंगे, ठीक है। अभी मत लिखो, इसको हम लोग लिखेंगे बाद में, पहले तुम इस चीज़ को समझ जाओ कि हम लोगों का 8 ऐसा स्टेट्स है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हम लोग इसको खींच लेंगे तो क्या हम लोगों का आधा इधर का काम खत्म हो जाएगा और आधा इधर का बच जाएगा, 2 पार्टीशन। 8 स्टेट तो वैसे ही खींच लिए, टोटल हम लोगों का 28 to 29 स्टेट्स, ठीक है। हम लोग इसको 28 रखते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको 28 मानते हैं। हम लोग अभी 10 को तुरंत खींच लेंगे, बाकी का कितना बचेगा, 18, ठीक है। एक तो हम बताए थे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट पे हम लोग किसके साथ थे, 7 सिस्टर्स, और यहाँ हम लोग किसके साथ थे, तो गुजरात से थे, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या कहता है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से ही हम लोगों का किसी टाइम पीरियड पे क्या निकला था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश से क्यों निकलेगा। मध्य प्रदेश को वो काट करके, वो एक ऐसी रेखा है, ठीक है, वो एक ऐसी लाइन से जो उसको क्या करती है, डिवाइड करते हुए निकल जाती है, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, देखोगे यहाँ पे गुजरात लिटिल पोर्शन क्या कर रहा है, राजस्थान को डिवाइड कर रहा है। कहाँ चले हम लोग, मध्य प्रदेश, और मध्य में जो हम लोगों का मध्य प्रदेश है उसी में हम लोगों का क्या था, अटैच था छत्तीसगढ़, तो बिल्कुल उसके पास में है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे झारखंड। अब हम लोगों का वेस्ट बंगाल, अब हम लोग ये देख रहे हैं, तुम इस चीज़ पे क्यों नहीं क्वेश्चन करते कि हम लोगों का ये ईस्ट है और ये हम लोगों का वेस्ट है, तो ये तो हम लोगों का, अगर हम लोग इसको क्या करें, एक लाइन से एक स्टिक रखा करो क्लास में, मारेंगे नहीं, ठीक है, यूज़ करेंगे इसको। अगर हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं तो ये तो हम लोगों का बहुत नाइंसाफ़ी है कि वेस्ट बंगाल क्यों कह रहे हैं इसको, है ना, वेस्ट बंगाल क्यों कह रहे हैं। ये हम लोगों का जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये हम लोगों का वेस्ट बंगाल है। एक समय पे ये हम लोगों का क्या हुआ, डिवाइड हो गया, डिवाइड होकर के अगला पोर्शन क्या निकला, बताओ अगला पोर्शन क्या निकला डिवाइड होकर के। अभी हम लोग 18 + 7 सिस्टर को छोड़ दिए, सिर्फ हम लोग 10 के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। और वो 10 स्टेट हम लोगों का क्या करेगा, 18 को चेंज करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, समझे। तो क्यों ऐसा कि किसके साथ डिवाइड था, किसके साथ इसका अटैचमेंट था, वेस्ट बंगाल का तो अटैचमेंट था, किसके साथ था, किसी का भी अटैचमेंट किसी के साथ ही रहता है, बताओ। फैन का भी अटैचमेंट अगर हम लोग पूछे तो रूफ के साथ है, ठीक है, बोलो। देखो ये पूरे बंगाल को हम क्या किए, यहाँ से उठा करके यहाँ रखा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको वेस्ट बंगाल कह रहे हैं। ये हम लोगों का टोटल बंगाल था, और एक समय हम लोगों का क्या हुआ, जिसको आप लोग क्लास 10 पे जाके ये स्टोरी खुलेगी, ये स्टोरी क्या खुलेगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल। और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हम लोगों का हुआ क्यों, कब हुआ, 1905, ठीक है। एक ट्रिक ये भी है कि हम लोग इसको क्या करें, हर एक डिजिट को एक्सप्रेस करें, या फिर 1905, जिस तरह से हमको याद रहता है हम याद रख लेंगे। कल बताए थे कि अब हम लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, इससे बांग्लादेश निकल गया और वो चला गया
कहाँ, ये इसका दो डिवीज़न हुआ, एक हुआ ईस्ट एक हुआ वेस्ट, तो हम लोगों के पास जो बचा इसको हम लोग कहते हैं वेस्ट बंगाल, इसलिए कहते हैं। लेकिन ये है किधर, ईस्ट पोर्शन पे है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को जो मिला, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक केक था और इस केक का हम लोग दो डिवीज़न किया, तो यहाँ पे ईस्ट था और यहाँ पे वेस्ट था, तो ईस्ट वाला कोई और ले गया और वेस्ट वाला हम लोगों को मिला। कब, पार्टीशन ऑफ, जब हम लोगों का क्या हुआ था, बंगाल हुआ था, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे मुद्दे आए थे तो जिसकी वजह से बंगाल का पार्टीशन हो गया था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या देखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक हम लोगों का ऐसा अकेला लाइन है जो क्या करता है अपने साथ, सबसे पहले अगर हम लोग इसका लोकेशन लेंगे तो वेस्ट से, कहाँ से स्टार्ट होता है, वेस्ट से, ठीक है। और सबसे पहला किसको ये लेकर के चलता है, गुजरात को। गुजरात के बाद ये वाला लाइन, ये नहीं कि पूरा पोर्शन कवर कर लेता है, क्या करता है, लेकिन ये राजस्थान को अपनी चपेट में लेता है। गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, तो बहुत ही पूरे एरिया को ये कवर करता है। छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ को कवर करने के बाद जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये झारखंड पहुंच जाता है, ठीक है, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल और फिर तुम्हारे लिए, ठीक है, टी फॉर त्रिपुरा और एम फॉर मिजोरम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया है, कुछ भी अपने लिए नहीं, एक घर पे MCB लगवाए हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्लियर हो जाता है हम लोगों का यहाँ पे। MCB हम लोग अपने घर पे लाइट ऑफ लाइट ऑन करने के लिए या फिर एक रूम के बाहर क्या करते हैं, MCB लगा देते हैं, जहाँ हम लोग उसको ऑन करते हैं तो टोटल हम लोगों का लाइट्स ऑफ और ऑन होता है, ठीक है। इस चीज़ को फिजिक्स में पढ़ोगे उसके बारे में। अब 2 मिनट के लिए आप तो खड़े ही हैं, ठीक है, बताओ ईस्ट पे कौन सा स्टेट लोकेट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वेस्ट बंगाल ईस्ट पे करता है। रुद्र, कौन सा स्टेट कवर करता है ईस्ट साइड से, नहीं किसी एक को ही कर रहा होगा ना, मिजोरम। गायत्री स्टैंड अप, यस। हम लोग क्या करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू सिट डाउन, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम लोग इसका टोटल ट्रिक्स जो है नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। GRMCJBTM, घर में MCB लगवाए तुम्हारे लिए। G स्टैंड्स फॉर गुजरात, R स्टैंड्स फॉर राजस्थान, M स्टैंड्स फॉर मध्य प्रदेश, C स्टैंड्स फॉर छत्तीसगढ़, J स्टैंड्स फॉर झारखंड, B स्टैंड्स फॉर बंगाल। बंगाल हम लोग सिर्फ याद रखेंगे, लेकिन हम लोग ये जानेंगे वेस्ट बंगाल है, ठीक है। ट्रिक्स, उसके बाद हम लोगों का TM, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम, ओके। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about all the 28 states, okay.